A case of enlarged kidneys and pleural effusion. Patient, a 25 years old lady. The first consultation was done on 3rd December 2007. The present symptoms were as follows. Light pain in right inguinal region before passing urine. Sensation of heaviness in bladder. Sometimes urine does not pass freely. Elementary functions are normal. Very anemic. Great weakness. Though she has been under treatment since 2nd November 2007 at the hospital where she is employed. Laboratory tests on 2nd November 2007 revealed as follows. Urine examination. Albumin 3+, pus cells 8 to 10 HPF, RBCs 15 to 20 HPF, epithelial cells full field, bacteria 2+. Blood examination. Bilirubin 2.8 mg/dl, AST SGOT 186 IUL, ALT SGPT 139 IUL, urea 110 mg/dl, creatinine 4.8 mg/dl, uric acid 11.0 mg/dl. Copies of urine and blood report. 2nd November 2007. On 4th November 2007, her tests were as follows. Serum potassium 5.50, blood urea 167 mg/dl, serum creatinine 7.50 mg/dl, SGOT 111 UL, SGPT 189 UL. Copy of the blood report of 4th November 2007. The patient is an employee of the hospital where the tests were conducted. Due to high values of urea and creatinine, her dialysis was done on 6th November 2007. She did not feel well even after dialysis, so ultrasound scanning was done on 8 November 2007. The impression was bilateral increase in renal echogenicity, bilateral pleural effusion with ascites. Copy of the ultrasound scanning report dated 8 November 2007. When her renal function tests were done on 10th November 2007, the report was blood urea 125 mg/dl, serum creatinine 4.56 mg/dl. Copy of renal function test report 10th November 2007. Even after all the efforts, she went on suffering. So she sought homeopathic help. When she visited, her hemoglobin was only 7.7 gram% with the symptoms detailed in the beginning. She responded well to this treatment. Shortly after, she became cheerful and her general health improved. On 12th January 2008,
Her hemoglobin was 12 g%, blood urea 15 mg dl, serum creatinine 0.8 mg dl. Copy of the report was not given. The values were told to the patient verbally. Now listen the story as told by the patient herself on 28 January 2008. अपनी बात शुरू से और अब तक की बताइए कि आपको क्या हुआ था, क्या क्या परेशानी हुई थी, फिर क्या क्या इलाज पहले हुआ था, फिर होम्योपैथी में इलाज से आपको क्या कुछ अंतर हुआ। सबसे पहले तो सर मेरा बीपी बढ़ गया था। कितना? 240। अच्छा। और 120 और 240 के बीच में मेरा बीपी था। हाँ। उसके बाद जब मुझे एडमिट किया गया उस टाइम पे 270 बीपी पहुंच गया था। अच्छा। उसके बाद फिर यूरिया, क्रेटिनिन, बायोकेमिस्ट्री सारी मेरी बढ़ गई थी। बिलिरुबिन, एसजीओटी, एसजीपीटी सभी टेस्ट बढ़ गए थे। हीमोग्लोबिन मेरा 9.5 आ गया था। अच्छा। उसके बाद प्लेटलेट की जो टेस्टिंग की गई तो प्लेटलेट मेरे 75,000 आ गए थे। 2 दिन तक शॉक की कंडीशन में होने के बाद उसके बाद जब 4 तारीख को टेस्ट कराए गए तो प्लेटलेट तो नॉर्मल हो गए थे। 4 नवंबर? यस सर, 4 नवंबर को प्लेटलेट नॉर्मल हो चुके थे 1.5 लाख, लेकिन यूरिया और क्रेटिनिन मेरा बढ़ा हुआ था। उसके बाद एक बार डायलिसिस हुआ मेरा। अच्छा। 6 तारीख को, 6 नवंबर को। डायलिसिस के बाद भी मेरा यूरिया, क्रेटिनिन नॉर्मल नहीं हो पाया। डायलिसिस के बाद फिर 3 दिन के बाद फिर यूरिया, क्रेटिनिन में थोड़ा सी कमी आई मेरी। ज़्यादा नॉर्मल नहीं आया टेस्ट, लेकिन थोड़ी पहले से रीडिंग कम थी। 10 तारीख को फिर दोबारा यूरिया, क्रेटिनिन करा गया। उस दिन रिपोर्ट थोड़ी बहुत हमारी नॉर्मल की रेंज में थी, लेकिन उसे हम नॉर्मल नहीं कह सकते थे। फिर 13 तारीख से मैंने मेडिसिन बंद कर दी अपनी। जितनी भी एलोपैथी की थी सारी बंद कर दी। उस समय हीमोग्लोबिन कितना था? हीमोग्लोबिन सर 8.4 था मेरा। अच्छा। उसके बाद फिर जब मेरी दोबारा मेडिसिन बंद हो गई, मैं 18 तारीख को आपके पास आई, यहाँ पर आपके होम्यो क्लिनिक में आई। उस दिन से मेरी दवाइयाँ शुरू हुई थी होम्योपैथी की। तब से आपको दर्द भी होता था? यस सर। दर्द कहाँ हो रहा था? एब्डोमेन में था। किडनी में भी प्रेशर बना रहता था। अच्छा। और चेस्ट पे हल्का हल्का दर्द रहता ही था। हीमोग्लोबिन बहुत कम था, इसलिए वीकनेस भी काफ़ी फील होती थी। और बीपी दिन भर में 24 घंटे में कम से कम 3 या 4 घंटे बीपी महसूस होता था। चलने में दिक्कत होती थी, थोड़ा भी पैदल नहीं चल पाती थी। वीकनेस शुरू हो जाती थी। थोड़ा देर बाद फिर बीपी कंट्रोल नहीं हो पाता था अगर ज़्यादा चलती रहूँ तो। अभी मैंने 2 महीने से होम्योपैथी की दवाइयाँ खा रही हूँ मैं। उससे मुझे हीमोग्लोबिन मेरा 11.8 आ गया है, क्रेटिनिन मेरा 0.4 आ गया है और यूरिया मेरा 15 है। और जनरल कैसा महसूस हो रहा? अभी पहले से मैं 95% बेटर फील कर रही हूँ। दर्द किडनी रीजन में? दर्द सर लो एब्डोमेन में अभी कभी होता है? यस सर, 10% है अभी। और जो किडनी रीजन में प्रेशर था वो? प्रेशर अब ऐसा कुछ नहीं है, प्रेशर की नहीं है कोई प्रॉब्लम। यानी अच्छा महसूस करती हैं? यस सर। The medicines used were as follows: Plumbum metallicum 1 mg 3 doses, 1 dose once in 15 days. Calcarea phosphoricum 30 every 36 hours intercurrently. Later, Calcarea phosphoricum 200 bi-weekly was given.